स्टार्ट कर दे मैम। अभी तो कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करो आकांक्षा, स्टार्ट करो। Okay. Good morning, ma'am, and all my dear classmates. Myself, Akansha Chaurasia. Uh, I am the student of B.Ed first year, Department of Education, CSMU, Kanpur. Today, I am going to represent paper second, that is Sociological Perspective of Education, on PowerPoint presentation on topic democracy and education. In this chapter, we will read about meaning and definition of democracy, concept of democracy, democracy according to different thinkers, basic principle of democracy, quality of democracy, type of democracy, democracy and aim of education, democratic education, features of democratic education, education and national objective, and after that conclusion. So I'm going to start with a quotation, that is, democracy means simply the burgeoning of the people by the people for the people. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का एक सिंपल मतलब है जो कि लोगों को किसी चीज के लिए प्रेरित करना, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। Meaning and definition of democracy. The word democracy has been formed of two Greek words, that is demos and kresi. Demos means people and kresi means rule. Thus, democracy means rule of the people. For political viewpoint, the rule in which the power of the people is supreme is called democracy. In Hindi, we can say that एक ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, उसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड्स को लेकर बना हुआ है। पहला है डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, मतलब लोग, और क्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है रूल, जिसका मतलब होता है राज्य। डेमोक्रेसी मोस्टली बेस्ड होती है दो वैल्यूज पे। पहली है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, और दूसरा जो होता है वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होता है। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है वो होता है जहाँ पर डिसीजन जो होते हैं वो पीपल के द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि वो एक रिफ्लेक्ट कर सके नेशन को बाय द गवर्नमेंट, वो भी पीपल के लिए। और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है वो एक ऐसा वो ऐसे सिटीजन के लिए होती है जो कि फ्री होता है हर हर एक समान इक्वालिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, और वो इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिटिकल डिसीजंस को। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन कहते हैं द गवर्नमेंट अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। Democracy according to different thinkers. According to Socrates, democracy would it seem a delightful form of government, anarchic and mostly assigning a kind of equality indiscriminately to equals and unequals alike. सॉक्रेट कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा डिलाइटफुल फॉर्म है गवर्नमेंट का, अनार्चिक का, और मोस्टली असाइन करता है एक ऐसी काइंड ऑफ इक्वालिटी, समानता, इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध, जो कि इक्वल और अनइक्वल अलाइक्स को लेकर है। सॉक्रेट का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, वो कहते हैं कि अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बेकाबू घोड़े को चुने। अगर आप उसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू में कर सकते हैं। According to Plato, freedom is a democracy. Freedom in the democracy is the glory of the state, and therefore, in a democracy, only will the freedom of nature design to dwell. स्वतंत्रता जनतंत्र राज्य की शान होती है। इसलिए जनता एक स्वतंत्रता है जनता इसलिए जनतंत्र एक स्वतंत्रता है जिसे ध्यान केंद्रित करता है। According to Aristotle, the foundation of democracy, constitution is liberty.
People constantly make this statement implying that only in this constitution is there any share in liberty at all. डेमोक्रेसी का आधार है स्वतंत्रता. The foundation of democracy is liberty. लोग निरंतर ऐसे वाक्य इम्प्लाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि वह स्वतंत्रता दे सके सभी को. ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. There are so many basic principles of democracy like citizen participation, equality, political tolerance, accountability, transparency, regular free and fair election, economic freedom, bill of right, human rights, multi-party system and rule of law. In Hindi we can say that नागरिक भागीदारी, समानता, राजनीतिक सहिष्णुता, जवाबदेही, पारदर्शिता, नियमित स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, आर्थिक स्वतंत्रता, अधिकार पत्र, मानव अधिकार, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ. क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी. Quality of democracy work on three principles, that is freedom, control and equality. Freedom work on the function of individual liberty, rule of law, public sphere. जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है वो तीन प्रिंसिपल पे वर्क करती है. एक हमारा फ्रीडम होता है, कंट्रोल होता है और इक्वालिटी. फ्रीडम जो है वो तीन फंक्शंस पे वर्क करता है. हाँ, इंडिविजुअल लिबर्टी पे, रूल ऑफ लॉ पे और पब्लिक स्पेयर पे. कंट्रोल जो है वो तीन चीज़ों पे फंक्शन करता है. एक हमारा कंपटीशन होता है, म्यूचुअल कंसेंट्रेंट्स होता है और गवर्नमेंटल कैपेसिटी होती है. इक्वालिटी तीन फंक्शंस पे वर्क करती है. एक हमारी ट्रांसपेरेंसी होती है, दूसरा पार्टिसिपेशन होता है और तीसरा रिप्रेजेंटेशन होता है. टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मोस्टली दो टाइप्स की होती है. एक हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी a democracy in which people vote to make their own rules and laws. In other words, we can say that direct democracy or a pure form of democracy is a form of democracy in which people on policy initiative directly decide on policy initiative directly. The theory of direct democracy works on many theories like philosophers, politicians, and social critics. Uh, Direct democracy was used in ancient Greek. Now, in this time, we don't use representative democracy, a government in which the people vote for a smaller group of citizens who make the rules and laws for everyone. In other words, we can say that representative democracy is also known as indirect democracy. It is a type of democracy founded on the principle of elected person representing a group of people as opposed to direct democracy. It was used in ancient Rome and United States of America. Democracy and aim of education. There are some aims of education like to make the individual good citizen, हर एक लोग को अच्छा नागरिक बनाना, to help everyone become cooperative, हर इंसान को सहयोगी बनाने में मदद करना, to give training of leadership, उन्हें नेतृत्व करने में प्रशिक्षण करना, to help in character building, उनका चरित्र निर्माण करने में मदद करना, to make individual vocationally efficient, हर एक इंसान को व्यवसायिक कुशलता प्रदान करना, to help everyone have good health and thus have a sound mind, सभी को अच्छी सेहत और स्वस्थ मन रखने के लिए मदद करना. Democratic education. Democratic education is an educational idea in which democracy is both a goal and a method of instruction. It brings democratic values to education and can include self-determination within a community of equals as well as such values of justice, respect, and trust. The Institute of Democratic Education in America, IDEA, defines democratic education as learning
that equips every human beings to participate fully in a healthy democracy. We can also say that education is democratic when it is inclusive because it is acceptable to a wide variety of people. Democratic education वह होती है जहां लोग के एक दूसरे की सुनते हैं, जहां बच्चे सोच होते हैं किसी चीज को समझने के लिए. दिस इज द वे टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न एंड एट द सेम टाइम टू लिसन टू देम. यही एक ऐसा मार्ग है जहां पर बच्चे किसी को सुन सकते हैं और अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सके. इन दिस कंडीशन टीचर डू नॉट फील डायमेंस्ड. इस कंडीशन में टीचर्स को बिल्कुल भी डायमेंस फील नहीं होता है एंड दे कंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट देम. और वो जितने भी बच्चे होते हैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके और उन्हें और टीचर्स को रिस्पेक्ट भी दे सकें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर अ चिल्ड्रन. जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो लोगों को किस तरीके से व्यवहार करते हैं. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन. There are some features of democratic education like free education. बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले सके और वो इन जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी का फ़ायदा उठा सके. ब्रॉडबेड एजुकेशन. एजुकेशन जो हो वो एक बहुत ही अच्छे स्तर पर हो ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी एक नॉलेज मिल सके. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. बच्चों को बच्चों से सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन ताकि बच्चों पे अच्छे से ध्यान दिया जा सके. कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन. कम्युनिटी सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन ताकि जैसे कि पेरेंट्स हमारे रहते हैं घर में तो उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल में किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. प्रोविजन ऑफ एडल्ट एजुकेशन. जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो किसी भी उम्र में एजुकेशन को ले सके. गुड सिटीजनशिप. एक अच्छी नागरिकता होनी चाहिए. डिसेंट्रलाइज एजुकेशन. एक अच्छे वेल मैनर्ड में एजुकेशन होनी चाहिए. अच्छा उसका करिकुलम होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए. स्कूल कहाँ पे है उसको एक अच्छे वातावरण में होना चाहिए ताकि बच्चे अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडीज में कर सके. उन्हें कोई भी डिफरेंट चीज़ों में या उन सब चीज़ों में नहीं करना चाहिए. फॉर नेशनल यूनिटी. उन्हें अगर ऐसी सारी चीजें होंगी तो हमारी एक जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो सब में भी बनी रहेगी. और कंपलसरी एजुकेशन. कंपलसरी एजुकेशन मतलब होता है जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही कंपलसरी होते हैं. साइंस हो गया, मैथ्स हो गया. बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी होनी चाहिए ताकि बच्चों का मानसिक के साथ शारीरिक भी विकास हो सके. एजुकेशनल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव. Following are some points for educational and national objective. First, to increase the productivity. उत्पादन में वृद्धि करना. To achieve social and national integration. सामाजिक और राष्ट्रिक एकता को प्राप्त करना. To accelerate the process of modernization. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति तीव्र करना. To cultivate social, moral and spiritual values. सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य का विकास करना. उत्पादन में वृद्धि करना. टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भारत हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतनी ज्यादा क्रॉप्स वगैरह को लेकर या जितने भी चीजें हैं उनमें इतना ज्यादा अभी डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसको भी बहुत सारी चीजों में डेवलप होने की भी अभी बहुत जरूरत है. Conclusion. Democracy has been accepted as a philosophy of modern life since education is a potential instrument for social changes leading to modernization.
It has to maintain close relationship with philosophy. यहाँ पे बोला है कि डेमोक्रेसी जो है, जो जनतंत्र है, वो मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमारी एजुकेशन जो है एक पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम सोशल चेंजेस कर सकते हैं, और आधुनिकीकरण में इसमें बहुत भागीदारी हो सकती है। इट हैज़ टू मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद द फिलोसफी, और इसको फिलोसफी के साथ बहुत ही गहनता से रिलेशनशिप स्थापित कर सकती हैं। इन ऑर्डर टू गेट एजुकेशन, डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। अगर हमें शिक्षा चाहिए तो उसके लिए जनतंत्र बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एजुकेशन इज एसेंशियल। अगर हमें मीनिंग और एप्लीकेशन डेमोक्रेसी के समझने हैं तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आजकल शिक्षा हर एक क्षेत्र में, अगर आप कहीं भी जाते हैं, जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, आप सब थैंक लोग यू। ने मुझे इतना सुना। हाँ हाँ, किसी को कुछ पूछना है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बारे में? अल्ताफ, शिवांकी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। हाँ, तो कुछ पूछना है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बारे में? डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन जो है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कि जो हमारी यस मैम। डेमोक्रेसी है उसका क्या काम होगा। पहला तो एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना, फिर यस। आपके अंदर व्यवसायिक कुशलता, ठीक है, उसको बढ़ाना, फिर आपका ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, फिर आपका जीवन यापन हेतु कौशल विकसित करना, फिर आपका शारीरिक मानसिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, फिर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करना, फिर नेशनल इंटीग्रेशन की भावना विकसित करना या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की भावना विकसित करना, ठीक है। और कैसे हम लोग खाली समय का सदुपयोग करें, ठीक है, ये भी जो है हमारी शिक्षा बताती है। और जैसे लोकतंत्र और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जैसे पाठ्यक्रम में सभी देश के बारे में आपका उसमें बताना चाहिए ना, ज्योग्राफी वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स में जो है दूसरे देशों के भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको आप बताइए। फिर डेमोक्रेसी को एनहांस करने के लिए और अच्छा बढ़ाने के लिए आप जो अपने टीचिंग्स मेथड में बदलाव कर सकते हैं, जैसे उसमें डिबेट, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्लानिंग मेथड है ना, ये सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं। फिर जो हम लोग स्कूल को स्थापित कर रहे हैं उसमें भी जो है उसका संगठन और प्रशासन जो है वो आपका लोकतंत्री सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ डेमोक्रेसी और एजुकेशन के बारे में हो गया। और डेमोक्रेसी में टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक टीचर जो अच्छा मित्र होता है, आपका अच्छा पथ प्रदर्शक होता है, ठीक है, और आपको सारी सुविधाएं प्रदान करवाता है और आपको प्रेरित करता है कि आप अच्छे मार्ग पर चले, ठीक है, और अपने ज्ञान को जो है उसको एनरिच करें, ज्ञान वर्धन करें, उसके साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बने, ठीक है। तो यही डेमोक्रेटिक वैल्यूज है और शिक्षा का जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। कैसे आप देश के नागरिकों को न्याय के बारे में बताएंगे, समता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, बंधुत्व की शिक्षा कैसे देंगे, और जब इंसान ये सारी शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो एक आदर्श नागरिक कैसे बनेगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो हम लोगों की बात है, जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो जो चार प्रिंसिपल मेनली डेमोक्रेसी में देखे जाते हैं वो है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, ठीक है। फिर दूसरा आपका इक्वालिटी यानी आपका समानता, फिर आपका भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी, फिर जस्टिस न्याय, और समाजवाद, और धर्मनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट, और जो है आपका सेक्युलर। तो ये सारे जो आपके भारतीय लोकतंत्र के जो प्रमुख तत्व और सिद्धांत हैं वो
जो है डेमोक्रेसी में सहायता देते हैं, और शिक्षा जो है एक सशक्त माध्यम है लोगों के अंदर अच्छे नागरिक वाले गुणों का विकास करने के लिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम। नो मैम। चलो ठीक है। आकांक्षा, यस ठीक मैम। रहा तुमने? हाँ, अच्छा अच्छा बताया तुमने। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुमने बताए हैं ना, और ये डेमोक्रेसी इन इंडिया वगैरह भी थोड़ा बता देती तो और अच्छा रहता। ठीक, उसके प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड कर देती तो थोड़ा ठीक रहता, क्योंकि हम लोग यहाँ डेमोक्रेसी और एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये सारा कुछ आना चाहिए। ठीक, ओके मैम। चलो थैंक यू मैम। ठीक है फिर।